Hello students, today we will start exercise 14C or that is of chapter rectilinear figures. From Salina Publications for class 9th. First sum. E is the midpoint of side AB and F is the midpoint of side DC of parallelogram ABC. First of all, draw a parallelogram ABCD. E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB means AE and BE are equal. F is the midpoint of DC means DF is equal to CF. Prove that AEFD is a parallelogram. It is so easy. Proof. What is ABCD? That is a parallelogram. Since ABCD is a parallelogram. A parallelogram की property पता होनी चाहिए. Both pair of opposite sides are equal as well as parallel. AB equal to CD and AB parallel to CD. यहाँ पे reason both pairs of opposite sides of parallelogram. अब AB, E point is the midpoint of AB. तो E AB को दो equal parts में divide करता है. What we have to write down AB as? We can write AB also as 2 times AE and CD as 2 times DF. Same way, 2 times AE parallel to 2 times DF. 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel. AE equal to DF and AE parallel to DF. एक property याद रखना. Only one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal as well as parallel, then it is also called parallelogram. यहाँ पे पूरी line लिखनी है वो. We know that if only one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal as well as parallel, then it is also called parallelogram. अब इस क्वाड्रिलेटरल AEFD में बेटा एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी आ गया और पैरेलल भी आ गया. तो देयरफॉर AEFD इज अ पैरेललोग्राम. तो क्या बन गई ये? पैरेललोग्राम बन गई. नाउ द सेकंड सम. द डायगोनल BD of parallelogram ABCD is a parallelogram. Diagonal BD of parallelogram ABCD bisects angle B as well as angle D. 1 2 के इक्वल है and 3 is equal to 4. Given क्या है हमें? Angle 1 is equal to 2, 3 is equal to 4 and ABCD is a parallelogram. ये अपने आप लिख लेना बेटा. To prove, we have to prove ABCD is a rhombus. Is a rhombus. Rhombus prove करनी है बेटा हम. Proof. एक पैरेललोग्राम सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनती है. देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. अब ये एटम क्योंकि पैरेललोग्राम इज गिवन, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल ऑलरेडी है. एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल कर दूं, सपोज DC एंड BC इक्वल कर दी. BC इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, चारों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे ना. हमें चारों इक्वल करने की जरूरत नहीं है. हियर angle 1 is equal to angle 2. This is given. ये given है हमें. But angle 1 is also equal to parallelogram है.
दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दिस, जेड शेप बन रही है, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 4 आर आल्सो इक्वल. रीजन ऑल्टरनेट, ऐसे बच्चे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, लाइंस आर पैरेलल, पैरेललोग्राम गिवन थी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देयरफॉर देखो 1 2 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया. नाउ 2 and 4 are of this triangle, in triangle ABD. Angle 2 is equal to angle 4. 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? AD. And the side opposite to angle 4 is AB. Reason, if two sides of a triangle are equal, then their opposite angles are also equal. That is called isosceles. If in a triangle two angles are equal, this and this angle 2 and 4 are equal, then their opposite sides are also equal. This is called converse of isosceles triangle property. AD and AB are equal. यहाँ पे एक proper line, we know that if a pair मतलब एक pair, a pair of adjacent sides of a parallelogram is equal, then it is also called rhombus. Therefore, ABCD is a rhombus. हो गया प्रूफ? ये बच्चे हमने प्रूफ करना था. Now we have question number 4. Third, sorry. Now we will do question number 3. The alongside figure shows a parallelogram ABCD in which AE, EF and FC are equal, so that DE parallel to FB, DE equal to FB, and DE BF is a parallelogram. First of all, I can draw the figure. ABCD, diagonal AC, E and F point है बच्चे किस पे? AC पे. E is at here and F is at here, such that AE, EF and FC are equal. DE and BF are already joined. Given in parallelogram ABCD, in parallelogram ABCD, AE is equal to EF is equal to CF. ये given है. To prove, we have to prove 3 parts. First part is DE parallel to FB. Second part, DE is equal to FB. And third part, DEBF is a parallelogram. Proof beta. Ab first part DE and BF we have to prove parallel. How we can do it? कैसे prove करें? DE parallel to BF. First of all, बच्चे ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो. इन ट्रायंगल्स DEA and BFC, ये साइड जहां डबल कट लगा दिया, DA first third is BC. Reason,
both pair of opposite sides of parallelogram. This angle 1 is equal to angle 2. Reason, Z shape बन रही है, lines are parallel because parallelogram is given. 1 is equal to 2 alternate interior angles. And this one जहां 3 कट लगा दिए, ये आपस में इक्वल गिवन है, तीनों इक्वल गिवन थे ना, AE, EF and CF. Then AE is equal to CF. This is given. By which rule the triangles are congruent? DEA congruent to BFC. Reason SAS. SAS rule से congruent होगी. This angle is equal to this angle. इसको 3 मार्क कर दिया, इसको 4 मार्क कर दिया. CPCT. CPCT की full form corresponding parts of congruent triangles. Now this angle 4 तक आ चुके हैं, 5 ले लिया बेटा. This angle is to be taken as 6. AC is a straight line. Angle 3 and 5 इन दोनों का सम, क्या रिलेशन है 3 and 5 के बीच में? लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे है, इज इक्वल टू 180. फर्स्ट इक्वेशन. रीजन, लीनियर पेयर. Same way, this is a straight line. 4 plus 6 is also 180. Second equation. Reason, linear pair again. From equations first and second. Equations first and second. Right hand side beta equal है, तो angle 3 plus angle 5 is equal to 4 plus angle 6. This one. But 3 and 4 हमने equal proof किए हैं, जहां मैंने टिक लगा दी, देखो ये रहा. तो 3 के प्लेस पे 4 लिख दो या 4 के प्लेस पे 3. एंगल 4 plus 5 is equal to 4 plus 6. यहां साथ में रीजन, सिंस एंगल 3 is equal to एंगल 4 proved above. ये क्या किया हमने? प्रूव किया है. 4 से 4 कैंसिल, एंगल 5 किसके इक्वल आ गया? एंगल 6 के. बट 5 and 6 देखो कौन से एंगल बन रहे हैं इन दो लाइनों से? Z शेप बन रही है, मींस, but these are alternate interior angles. These are alternate interior angles. So therefore DE parallel to BF. DE क्या आ गया? BF के पैरेलल आ गया. DE parallel to BF. Now बच्चे हमने फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. सेकेंड हमें चाहिए था DE is equal to FB. DE and FB we have to want equal. अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी तो DE फर्स्ट सेकंड इज BF, यहीं पे लिख दो BF. इसका रीजन भी सेम, CPCT. मतलब DE is equal to BF. रीजन इसका सेंस, ट्रायंगल DEA congruent to BFC we have already proved above. अब नाउ इसको बच्चे ज्वाइन करना पड़ेगा थर्ड पार्ट के लिए, बिकॉज DEBF वी हैव टू प्रूव पैरेललोग्राम. अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये साइड बच्चे इसके इक्वल भी आ गई, ये साइड इसके पैरेलल भी आ गई. फर्स्ट सम में भी हमने किया था एक रीजन, वी नो दैट if only one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. Therefore, DEBF is a parallelogram. इसलिए ये पैरेललोग्राम है बच्चे, यही हमने प्रूव करना था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. Now we have question number 4. Fourth question, in the alongside figure
ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram in which AP bisects angle A. AP bisects angle A means angle 1 and angle 2 are equal given है. And BQ bisect angle B. यहां से बच्चे BQ लाइन जा रही है. This is Q bisects angle B means angle 3 and angle 4 are equal given. Means given मैं साथ साथ लिख देता हूं. In parallelogram ABC, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. To prove, हमने 3 parts इसमें भी बच्चे प्रूव करने हैं. फर्स्ट पार्ट है AQ is equal to BP. Second part, PQ is equal to CD. And third part, ABPQ is a parallelogram. These 3 parts we have to prove. Proof. First part, AQ is equal to BP. PQ is equal to CD. तो PQ को ऑलरेडी ज्वाइन करना पड़ेगा CD के साथ. ABPQ is a parallelogram. How we can do it? AQ को BP के इक्वल कैसे करें? AQ and BP we have to prove equal. We have to these two triangles congruent. But how? कैसे करेंगे वो देखो. या बच्चे छोटी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें तो भी चल जाएगा. ओके. This side is equal to this side and angle 1 is equal to angle 5 alternate, 3 is equal to 6 alternate. Okay. Yeah. Yes. बड़ी ट्रायंगल की बजाय बच्चे हम छोटी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं. बाइसेक्टर का कोई रोल तो है नहीं इसमें. है भी है, चल जाएगा. ओके. नाउ इक्वल नहीं है. जस्ट वेट. हियर इन दिस फिगर इस पॉइंट को बच्चे ओ ले लो. 1 is equal to 2, 3 is equal to 4 का कोई रोल नहीं है हमारे पास. यहाँ पे हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेंगी. स्मॉलर AOQ and POB. In triangles AOQ and not BOP, POB. Order is must. Okay. Angle 1 is equal to angle 5. रीजन alternate क्योंकि लाइन पैरेललोग्राम तो गिवन ही है ना बिगर. रीजन alternate interior angles. This angle is equal to this angle. इसको बच्चे 6 and 7 ले लो. Angle 6 is equal to angle 7. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Now third reason is, थर्ड रीजन कोई भी नहीं बन रहा बच्चे. चलो छोड़ो इसको, इस मेथड से रहने दो. अब यहां पे देखो बच्चे, एंगल 1 2 के इक्वल है. एंगल 1 is equal to angle 2. This is given. But angle 1 is also equal to 5. But angle 1 is equal to also equal to 5. Alternate interior angles. तो 2 and 5 equal आ गए. Therefore 1 is same
वन एंगल 2 के यू इक्वल है, वन 5 के यू इक्वल है, तो 2 and 5 आर इक्वल। अब 2 and 5 कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? मैं यहाँ पे बच्चे फिर से फिगर बना रहा हूँ बिकॉज फिगर थोड़ी सी ज्यादा वो हो गई थी। Q P A B. This point is taken as O. 1 is equal to 2, but 1 is equal to 5. Alternate interior angles. तो यहां से क्या आ गया? 2 and 5 इक्वल आ गए। 2 and 5 कौन सी ट्रायंगल के एंगल है? बीपीए के। इन ट्रायंगल बीएपी 2 and 5 आर इक्वल। 2 के अपोजिट बेटा बीपी, 5 के अपोजिट एबी। रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सेम वे बच्चे ये एंगल इसके इक्वल है, 3 and 4 आर इक्वल। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 3 किसके इक्वल? इस एंगल के। इसको बच्चे 6 7 8 ले लिया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इज गिवन। 2 is equal to 5, this is also given। ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब 3 3 के इक्वल है तो 4 किसके इक्वल आ गया बेटा? 8 के। नाउ 4 and 8, 4 के अपोजिट कौन सी साइड है? ए क्यू। 8 के अपोजिट ए बी। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 and this has taken as equation number 2। फ्रॉम इसका रीजन भी क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। कौन सी ट्रायंगल में? क्यू ए बी में 4 and 8 इक्वल है। 4 के सामने ये साइड, 8 के सामने ये साइड। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब ए क्यू ए बी के इक्वल, बीपी भी ए बी के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ए बी सेम है तो बीपी इज आल्सो इक्वल टू ए क्यू। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। ए क्यू इज इक्वल टू बीपी या बीपी इज इक्वल टू ए क्यू, दैट इज द सेम थिंग। नाउ बीपी इज आल्सो पैरेलल टू ए क्यू। कंप्लीट एडी बीसी के पैरेलल थी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बीपी क्या है? उसका पार्ट है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब एक पेयर ये साइड इसके इक्वल भी और पैरेलल भी। सेम वही रीजन जो हमने लास्ट समय किया था। We know that if only one pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. A B P Q क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया एक। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। हमारा थर्ड पार्ट पहले आ गया है, सेकंड पार्ट अभी प्रूव करेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं तो ये साइड इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram. But AB is also equal to CD. Why? Reason? क्या रीजन है इसका? Because ABCD is a parallelogram given है और opposite sides of parallelogram equal होती हैं। Opposite sides of parallelogram क्या होती हैं? Equal. Therefore AB PQ की equal, AB CD की equal। PQ किसके इक्वल आ गया? CD के इक्वल आ गया। ये बच्चे हमारा सेकंड पार्ट था। दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तीनों पार्ट हमारे आ गए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. हमें बच्चे फिगर में ही मार्क किया हुआ है, यहां से एक लाइन है, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। डबल डबल आर्क मार्क की हुई है फिगर में, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। और BE यहाँ पे सिंगल सिंगल आर्क मार्क है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। मार्क कर दूं 1 2 3 and 4 गिवन
इन पैरेललोग्राम ABCD 1 2 के इक्वल एंड 3 इज इक्वल टू 4, ये दो चीजें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, AB इज डबल ऑफ BC, AB को BC का डबल प्रूफ करना है। हाउ वी कैन डू इट, प्रूफ 1 2 के इक्वल है, गिवन है हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि 3 4 ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, alternate interior angle, therefore 1 2 के इक्वल 2 5 के इक्वल, 2 कॉमन तो 1 5 के इक्वल आ गया, और 1 and 5 इस ट्रायंगल के एंगल है AED में 1 and 5 आर इक्वल, 1 के अपोजिट कौन सी साइड है DE, 5 के अपोजिट AD, इक्वेशन 1, रीजन कन्वर्स ऑफ एंगल से साइड इक्वल हो रही हैं, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सेम वे नाउ एंगल 3 4 के इक्वल गिवन है, but 3 is also equal to 6, but 3 is also equal to 6, alternate interior angle, therefore 4 is equal to 6 आ गया बेटा। 4 के अपोजिट कौन सी साइड है CE, 6 के अपोजिट BC, सेकेंड सेम रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। फ्रॉम इक्वेशन now adding फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करो, DE प्लस CE, लेफ्ट में लेफ्ट साइड और राइट में राइट साइड, AD प्लस BC, DE प्लस CE क्या बन गया बच्चे CD, AD प्लस BC, AD किसके इक्वल है फिगर में देखो, AD इज इक्वल टू BC, BC प्लस BC लिख सकते हैं बेटा, यहां साथ में रीजन लिखेंगे, सेंस AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या रीजन आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका रीजन आएगा। CD किसके इक्वल है AB के, BC प्लस BC 2BC हो गया, यहाँ पे फिर से सेम रीजन, सिंस CD इज इक्वल टू AB अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यही बच्चे हमने प्रूव करना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में बेटा क्या है हमारे पास, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, bisector of opposite angles of a parallelogram are parallel. First of all, draw a parallelogram, name it as ABCD, bisector of angle A and bisector of angle C. One angle 2 के इक्वल गिवन है, bisector का मतलब divide it into 2 equal parts, एंगल का bisector है तो एंगल को और साइड का तो साइड को, यहाँ पे E ले लो यहाँ पे F ले लो। टू प्रूफ क्या करना है, bisectors are parallel, AE पैरेलल टू CF प्रूव करना है, गिवन क्या है हमें 1 2 के इक्वल, एंगल 1 2 के इक्वल एंड 3 इज इक्वल टू 4, ये दो चीजें गिवन है। टू प्रूव दिस वन, प्रूफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCD, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite angles of parallelogram are equal. What we have to write down angle DAB, because DAB is divided in two parts, two equal parts, तो इसको बच्चे 2 angle 2 लिख सकते हैं। Same way this complete angle is divided into 2 equal parts, can be written as 2 angle 3, since 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4 given, 2 से 2 cancel, angle 2 is equal to angle 3, but this is a parallelogram, 3 is equal to 5, but angle 3 is equal to 5, Z shaped, lines are parallel because parallelogram, alternate interior angles,
देयरफॉर देखो 2 3 के इक्वल, 3 5 के इक्वल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 आ गया। बट ये कौन से एंगल है 2 and 5? बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर AE पैरेलल टू CF। यही बच्चे हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। Prove that bisector of interior angle of a parallelogram form a rectangle. Bisector of interior angle of a parallelogram. This is also very important sum. इसका bisector, इसका bisector, इसका bisector, इसका bisector. इसको बच्चे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S. Bisector means ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। We have to prove PQRS is a parallelogram. 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल, ये गिवन है। To prove PQRS is a rectangle. Proof बेटा। देखो in these two angles, sorry, ये दो एंगल ले लो बेटा, this and this, एंगल ADC प्लस एंगल DCB is equal to 180. रीजन को इंटीरियर एंगल्स। इस कंप्लीट एंगल को बच्चे 2 एंगल 7 लिख सकते हैं, इस कंप्लीट एंगल को 2 एंगल 5 लिख सकते हैं। 180, 2 इज कॉमन, एंगल 7 प्लस एंगल 5 इज 180। एंगल 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 90। एंगल 7 प्लस एंगल 5 कितना आ गया? 90 आ गया। अब इस एंगल को बच्चे मैं 8 तक एंगल ले चुका हूं, इस एंगल को 9 मार्क कर दूं। नाउ इन ट्रायंगल DPC, दिस इज P पॉइंट, इन ट्रायंगल DPC एंगल 7 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। बट व्हाट इज 7 प्लस 5? We have proved 90. 90 plus angle 9 is equal to 180. Angle 9 कितना आ गया? 180. 90 साइड जाके माइनस हो जाएगा, that we get 90. Angle 90 आ गया 10, इसको बेटा 11 मार्क कर लो, इसको 12। सिमिलरली ये सिमिलरली का सिंबल है। सिमिलरली एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 12 इज इक्वल टू 90। इस क्वाड्रिलेटरल के PQRS के चारों एंगल 90 कर दिए, तो क्या बन गया? Therefore PQRS is a rectangle. ये बच्चे हमने प्रूव करना था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर, चलो आज के लिए बेटा इतना ही एनफ है, बिकॉज आई हैव सम जरूरी काम है मुझे। एनफ।